हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस के साथ। दिस इज पार्ट नंबर सेकंड ऑफ आवर लेक्चर सीरीज सॉलिड स्टेट्स। लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द स्टार्टिंग ऑफ आवर solid state. In that we have seen the classification of solids into two groups, that is amorphous solids and the second one is crystalline solids. So in this video the main contents are classification of crystalline solids, crystal structure and crystal system. So this is the main points we have to discuss in this video. So first point, classification of crystalline solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कौन से ऐसे टाइप्स है या फिर कैटेगरीज है, वो है 4 कैटेगरीज. सो फर्स्ट वन आयनिक सॉलिड्स, सेकंड कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, थर्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड फोर्थ वन इज metallic solids. First type of crystalline solid is ionic solids. So we know that ionic bond. So the solids formed by ionic bond called as ionic solids, and ionic bond formed between oppositely charged ion, means positively charged ion and negatively charged ion. Accordingly we can say the positively charged ion called as cation and negatively charged ion called as the anion. So the characteristics, first one is the constituent particles of ionic crystals are charged ion, and the cations and anions may differ in size, means जो इनकी जो होते हैं चार्ज आयन मीन्स कैटायन एंड अनाइन जो डिफरेंट साइज के होते हैं. सेकंड है आयनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड इन नेचर, हार्ड और ब्रिटल, और ड्यू टू the force of attraction between them, because these are the oppositely charged ion, and because of this they have high melting points. इनका जो melting point रहता है वो बहुत ही high रहता है. So next property, these are non-conductors of electricity in solid state, but they can allow to flow electricity in diffuse state, or we can say that molten state. When we heat the ionic solids, then it can be allowed to electricity flow from them. So the examples of ionic solids are NaCl, means common salt, KCl and K2SO4. Second type of crystalline solid, that is covalent network solids. So covalent network solids, or simply we can say that covalent solid, is formed by covalent bond. We have seen that this is a chemical bond, type of chemical bond, covalent bond. This bond is formed by sharing of electron pair by two different atoms. So the characteristics of covalent network solids. So first, the constituent particles in covalent network solids are atom, मीन्स यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो या फिर जो मेन होता है, सिंपलेस्ट बोलेंगे हम तो वो यहाँ पर एटम्स होते हैं. दूसरा जो है वो है द एटम्स इन दीज क्रिस्टल्स आर लिंक बाय कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मीन्स जो एटम होते हैं वो कंटिन्यूसली ऐसे टुगेदर लिंक्ड होते जाते हैं चेन टाइप कोवैलेंट बॉन्ड की मदद से. द रिजल्ट इज रिजिड 3-dimensional नेटवर्क. यहाँ पर 3D जो नेटवर्क होता है, 3D सिस्टम या फिर फॉर्म होता है जो कि एक जाइंट मॉलिक्यूल बनता है. द एंटायर सिस्टम इज अ सिंगल मॉलिक्यूल. सो यहाँ पर एक सिंगल मॉलिक्यूल बनता है जो कि कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स कहते हैं. और यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट है, दे आर वेरी हार्ड एज लाइक आयनिक सॉलिड्स, somewhat brittle solid with extremely high melting point, for example 1000 degrees Celsius or more than this. So unlike ionic solids, so they do not dissolve in water, they dissolve in organic solvent, especially they do not conduct electricity. So these are the main, and high melting point, this is covered already. So examples, carbon compounds like as diamond and graphite, this is allotropic form of carbon, silicon dioxide or quartz, and next one is a boron nitride. So third
types of crystalline solid is molecular solids. First, characteristics. The constituent particles of a molecular solid are molecules. Before this, we have seen that atoms are the constituent particles of covalent solids. So in these molecular solids, the molecules are the constituent particles. Next is these molecules are held together by various intermolecular forces of attractions. Means intermolecular force between the molecule के जो बीच में जो intermolecular means two molecule के between जो force होता है उसको हम intermolecular force, और ये attraction होता है, repulsive नहीं होता, repulsion वाला नहीं होता, attractive force होता है. थर्ड है, यहाँ पर हम कैटेगरीज बनाएंगे कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है. तो फर्स्ट है वीक डायपोल इंटरेक्शंस इन पोलर मॉलिक्यूल्स. मींस जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर HCl like as H plus and Cl minus. So these are the polar molecules. HCl first, then H2O2 and third is SO2. दूसरा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वेरी वीक डिस्पर्शन फोर्स और वी कैन से लंडन फोर्सेस in non-polar molecules. Here is a absence of polarity. So examples such as solid methane CH4 and dry hydrogen H2. Next force is intermolecular hydrogen force. Hydrogen bonding बोल सकते हैं हम उसको. So examples are H2O ice, solid H2O, और ammonia NH3 and hydrogen fluoride HF. Next characteristics is molecular solids are soft, often volatile, have low melting temperature, melting point, and are electrical insulators. Next type of crystalline solid is metallic solids. These are the crystalline solids formed by atoms of same metallic elements held together by metallic bond. ये जो solids है वो metallic bond से form होते हैं और metal में ही होते हैं. metallic element के ही बनते हैं. चलिए प्रॉपर्टीज जानते हैं. मेटल्स आर मेलेबल. मेलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है मेटल की, वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स इसका हम थीन शीट बना सकते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी है मेन डक्टिलिटी. मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. इसका हम सिंपली लॉन्ग वायर बना सकते हैं. एक प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी. थर्ड है मेटल्स हैव गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट वन इज दे आर ग्लिटर. मीन्स ये बहुत चमकते हैं. और हार्ड इन नेचर, ये हार्ड भी होते हैं. एग्जाम्पल्स आयरन, कोबाल्ट, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर. सारे जो मेटल होते हैं मेटालिक एलिमेंट, इसको हम मेटालिक सॉलिड्स बोल सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है जो कि है क्रिस्टल स्ट्रक्चर. So in crystallography, crystal structure is a description of ordered arrangement of atoms, ions or molecules in crystalline material. Means crystallography is a branch of crystal structures. यहाँ पर हम ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन मटेरियल की जो भी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, और मिनरलॉजी और क्रिस्टलोग्राफी. Crystal structure is a unique arrangement of atoms in crystallines is another definition of crystal structure. Or another is a crystal structure is composed of unit cell. Unit cell is another concept, we will see it later. A set of atoms arranged in particular way which is periodically repeated in 3-dimensional on a lattice. आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है, पिक्चर में बनाया है. क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाया है जो कि यूनिट सेल का एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है, बार बार रिपीट. जैसे हमें एक वॉल बनानी तो क्या करेंगे, हम वहाँ पर ईंट अगर लगाते जाएंगे एक ईंट तो आसानी से एक वॉल बन जाएगी. वैसे ही यूनिट सेल का अगर हम रिपीटेशन करते हैं, एक 3-डायमेंशनली बनाते हैं तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है. तो ये सिंपल है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Terms related to the crystal structure. First one is lattice. Lattice is the geometrical arrangement of points in a 3-dimensional periodic array. यहाँ पर देख सकते हैं आप येलो जो दिख रहे हैं यहाँ पर आपको समझ में आएगा. A crystal structure is obtained by
attaching a constituent particle to each of the lattice point। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल लैटिस किसको बोल सकते हैं? यहाँ पर जो क्यूब दिख रहा है वहाँ पर मैंने एक इंडिकेशन दिया है जो कि ऑरेंज कलर का, वहाँ पर हम बोल सकते हैं क्रिस्टल लैटिस। सो सच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट आर अटैच टू लैटिस पॉइंट्स जो अटैच्ड किए हैं वहाँ पर कॉर्नर के, तो उसको बेसिस बोल सकते हैं, बेसिस ऑफ क्रिस्टल लैटिस। द क्रिस्टल लैटिस आल्सो कॉल्ड एज अ स्पेस लैटिस। ध्यान रखिए यहाँ पर हम क्रिस्टल लैटिस को स्पेस लैटिस भी बोलेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते। इंपॉर्टेंट है बेसिस। अ बेसिस इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स इन पर्टिकुलर फिक्स अरेंजमेंट इन स्पेस। जो पीछे देखा है वो है बेसिस। सो वी कैन से दैट क्रिस्टल इज अ स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट by attaching basis to each of the lattice point। मीन्स बेसिस और क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स का जो बनता है वो क्रिस्टल बनता है। यहाँ पर मैंने दिखाया है बेसिस प्लस लैटिस, जो लैटिस पॉइंट है और बेसिस है जो कि लैटिस से बेसिस बनता है, और टुगेदरली अगर बेसिस एंड लैटिस करते हैं तो हम एक क्रिस्टल फॉर्मेशन मिलता है। अगला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट सेल, जो कि एक बहुत ही बेसिक यूनिट है। बेसिक जैसे कि हमारे बॉडी में सेल, हमारे बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। जैसे कि कोई भी मटेरियल का है वो बेसिक है, जैसे एटम। तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो बेसिक यूनिट है, थ्री डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, उसका है यूनिट सेल। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। द स्पेस लैटिस ऑफ क्रिस्टल इज अ बिल्ड अप ऑफ अ थ्री डायमेंशनल बेसिक pattern। This pattern is repeated in three dimensional to generate an entire crystal। जिसकी हमने पीछे देखा है क्रिस्टल फॉर्मेशन ऐसे बनता है। यहाँ पर देखा है क्रिस्टल लैटिस, और जो एक हमने चूज़ किया है इसको हम बोल सकते हैं यूनिट सेल। चलिए और देखते हैं इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन। ये बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है इसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। नोट डाउन दिस, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट सेल। सो द डायमेंशंस इफ यूनिट सेल अमॉन्ग द थ्री एक्सिस आर डिनोटेड बाय सिम्बॉल्स ABC। मीन्स यूनिट सेल के हम यहाँ पर डायमेंशंस देख रहे हैं जो कि ABC से यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं। और दूसरा जो है एंगल्स बिटवीन द एक्सिस, थ्री एक्सिस X, Y एंड Z, तो इनके बीच का जो एंगल्स है हम अल्फ़ा, बीटा एंड गामा लैटिन लेटर से हम दिखाएंगे। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो मैंने यहाँ पर एंगल दिखाए वो अल्फ़ा, बीटा, गामा से, और जो एजेस से या फिर डायमेंशंस देख सकते हैं आप यहाँ पर ABC से दिखाया है एजेस। ओके, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सो फर्स्ट टाइप है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको सिंपली बोल सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीविएशन में SC, सिंपल यूनिट सेल। किसको बोल सकते हैं? द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर ओनली, दैट यूनिट सेल इज कॉल्ड एज सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। यहाँ पर डायग्राम में देखिए, यहाँ पर क्यूब है, क्यूब के जो 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर पर वहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो भी है, वहाँ पर दिखा है 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इसको बोलेंगे हम सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप 3D में दिखाया है, जो कि अंदर का उसका स्ट्रक्चर है, जो कि 8 उसके कॉर्नर्स पे हमने लगा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट सेल इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपली हम एब्रीवेट कर सकते हैं BCC। चलिए BCC किसको बोल सकते हैं? द यूनिट सेल इन विच वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ इट्स बॉडी in addition to corner particles called as body centered unit cell। यहाँ पर देखिए फिगर में मैंने दिखा है कि वन मोर पार्टिकल इज एडेड टू बॉडी सेंटर ऑफ इट्स बॉडी, जो कि ऑलरेडी 8 जो पार्टिकल्स है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो तो ऑलरेडी है, लेकिन वन मोर इज एडेड टू द इट्स सेंटर ऑफ बॉडी। सो इसको बोलेंगे हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या फिर BCC। Third type of unit cell is face centered unit cell or abbreviation FCC। So what is meant by FCC?
This unit cell consists of particles at the center of each faces in addition to corner particles. So see this figure. देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 8 पार्टिकल्स जो कि ऑलरेडी प्रेजेंटेड है एट इट्स कॉर्नर. 8 जो कॉर्नर है वहाँ पर एक एक पार्टिकल्स है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. एंड यहाँ पर 6 फेसेस आप देख सकते हैं. क्यूब के जो 6 फेसेस है वहाँ पर एक एक एडिशन यहाँ पर हो चुका है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का. सो इसको बोल सकते हैं हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फिर FCC. नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल बेस सेंटर्ड यूनिट सेल. इसको हम BCC नहीं बोलेंगे क्योंकि बॉडी सेंटर्ड को हमने बोल दिया है BCC. सो चलिए नो प्रॉब्लम. दिस यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स एट अ सेंटर ऑफ एनी 2 ऑफ इट्स अपोजिट फेसेस इन एडिशन टू द कॉर्नर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. मीन्स यहाँ पर देखिए आप फिगर में देख सकते हैं 8 कॉर्नर्स पर 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ऑलरेडी. लेकिन जो अपोजिट 2 फेसेस है एनी 2 कंसिडर करेंगे फेसेस 6 में से. आउट ऑफ 6 फेसेस होते हैं हर क्यूब को. लेकिन यहाँ पर हमें ओनली 2 फेसेस का कंसिडरेशन करना है जो कि यहाँ पर 2 एडिशन यहाँ पर हो चुके हैं पार्टिकल्स. सो इसको बोलेंगे हम बेस सेंटर्ड यूनिट सेल. ये देख रहे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए कुछ इस तरह से दिखती है जो कि 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होते हैं. मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. आगे देखिए प्रिमिटिव सेल अगेन दिखा रहा है. अंदर का स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है. नेक्स्ट जो है वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है. ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है. अंदर सबसे अंदर जो दिख रहा है वो सेंटर पे वहाँ पर एक मॉलिक्यूल एडिशनल होता है. ये देख सकते हैं आप अंदर का स्ट्रक्चर. ये है फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर ये देखिए कुछ इस तरह से जो 6 फेसेस है वहाँ पर देख सकते हैं आप 6 फेसेस. ये ओके. देन देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है. पैकिंग कंप्लीटली हो चुका है. ये देखिए फेस सेंटर्ड. ये फेस सेंटर्ड का पूरा स्ट्रक्चर अंदर का. क्रिस्टल सिस्टम. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर दिस वीडियो. बाय मैथमेटिकल एनालिसिस इट हैज़ बीन प्रूव दैट only 14 different kinds of space lattice और crystal lattices are possible. Means यहाँ पर जो space lattices है या फिर crystal lattice से बोलते हैं हम उसको. सो इसके जो अरेंजमेंट है डिफरेंट काइंड से ओनली 14 यहाँ पर मिल चुके हैं जो अरेंजमेंट करने के. इन अदर वर्ड्स देर इज़ ओनली 14 वेज इन विच सिमिलर पॉइंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल ऑर्डर. 3D जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका जो है ओनली 14 वेज है हमारे पास. तो वो 14 लैटिसेस विच डिस्क्राइब द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताते हैं वो है ये 14 लैटिसेस. और इसको बोलेंगे हम ब्रेविस लैटिसेस. ब्रेविस लैटिस बोलेंगे हम इसको. सो 14 ब्रेविस लैटिसेस आर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम. 7 क्रिस्टल सिस्टम किया गया है बेस्ड ऑन द structure. 7 crystal systems are associated with this 14 previous lattices. We can also call this as 14 unit cell. चलिए आगे बढ़ते देखते हैं कौन से वो 7 systems है. 7 systems named कैसे. तो फर्स्ट वन है क्यूबिक सिस्टम. नेक्स्ट है ऑर्थोम्बिक. थर्ड है टेट्रागोनल. 4 है रोम्बोहेड्रल. 5th नंबर है मोनोक्लिनिक. 6th number triclinic, and last one is hexagonal. So these are the 7 crystal system. We have to see this in our next part number 3 of our solid state lecture series. So thank you for watching YouTube channel साइंस के साथ.